Hello kids, welcome to my channel Math Study Time. I am here with you with my very first video as I promised you that we will meet very soon, and today I have brought a first chapter for grade 7 and that is integers. So here these points we will cover in this chapter: introduction and types of integers, properties of integers, integers sign, addition and subtraction of integers, and multiplication and division of integers. But in this video we will discuss these first 2 points: introduction and types of integers and the properties of integers. So let us start with introduction. So what are integers basically? So the integers are the collection of whole numbers, natural numbers, okay, including 0. They can be positive and negative, okay. So as you can see here, on the number line we can represent these integers. So here at the center it is written 0, okay. So 0 is neither positive nor negative, and when we go towards left from 0 you can see these negative integers, and 0 to right hand side when we move it is positive integer, okay. So all are positive integers. It can be extended. So as I told you, these are the 3 types of integers. Positive integers, in this integer we include natural numbers, and I hope you know the natural number. You have learned in previous class the definition of natural numbers. So what are the natural numbers? If you remember, the natural number starts from 1 and it can be indefinitely, okay, undefined, and 0 is neither negative nor positive, and the negative integers are also, they can be natural number but they are in negative form. So these are the basically 3 types of integers. Now we will discuss about properties of integers, and this is the very important part, because if you learn this way, the how to write integers, how to identify the property of integers, you can easily solve the problems, okay, related to integers. So here first property is commutative property. So if we have 2 integers, it can be positive or negative. So and we are adding, because in addition we are using the operation addition in commutative property. So here we will add a plus b, so the result should come b plus a. मतलब अगर आप इसको a plus b ऐड करें तो वो b plus a दोनों तरफ से सेम आना चाहिए. As you can see, I have taken one example. 4 plus 3 7 and 3 plus 4 also 7. तो दोनों केसेस में आंसर हमारा 7 है. इट मीन्स यहाँ पे ये एप्लीकेबल है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में, ओके. नाउ वी विल चेक इन सब्ट्रैक्शन, इज दिस एप्लीकेबल और नॉट. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन, a minus b, okay, is not equal to b minus a. Why? We will take the same example. Look at this, 4 plus 3. If we will subtract 4 minus 3, what will come here? 1, okay. But 3 minus 4 will not be 1, it will be minus 1. So they are not equal. So that's why in subtraction commutative property is not applicable. Understood? Now multiplication, we will check in multiplication the property of commutative, is it applicable. So here it is given, if a into b is equal to b into a, then if they are coming same then it is applicable, okay. So 4 into 3 12 and 3 into 4 also 12. दोनों केस में 12 आंसर आएगा आपको, चाहे आप 4 into 3 करेंगे या फिर 3 into 4 करेंगे. अभी हम चेक करते हैं डिवीजन ऑपरेशन में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है. सो a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a. वाई? टू एनी एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको एक नंबर देती हूँ, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा?
4, ओके, बट कैन यू डिवाइड 3 बाई 12? क्या आप 3 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 3 बहुत छोटा है, 12 बड़ा है, डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये एप्लीकेबल नहीं है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में। अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम 3 नंबर्स लेते हैं, a प्लस बी। अगर हम पहले a प्लस बी को ऐड करें, बाद में c ऐड करें, तो वो इक्वल आना चाहिए किसके? a प्लस बी प्लस सी, मतलब b प्लस सी को ऐड करके फिर a में प्लस करेंगे। ओके, लुक एट द एग्जाम्पल। जैसे कि 4 प्लस 3 को पहले हम ऐड करेंगे तो 7 आएगा, फिर बाद में उसमें 2 प्लस करते हैं अगर, तो 9 आएगा। अब दूसरे केस में चेक करते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 2, मतलब 3 प्लस 2 को पहले अगर हम ऐड करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर द रूल ऑफ बोर्ड मास, अगर आपको बोर्ड मास याद है तो उसमें हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 3 प्लस 2 विल बी 5, 5 प्लस 4 ऑल्सो 9, तो दोनों केस में आंसर 9 आ रहा है, तो इट इज़ एप्लीकेबल, येस। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन में सेम एग्जाम्पल यू कैन टेक a minus b and minus c। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्ट्रैक्ट a एंड b, तो a b क्या था यहाँ पे? 4 एंड 3, तो 4 माइनस 3 1 होगा, बट क्या आप 1 माइनस 2 कर सकते हैं? बिकॉज c इज़ 2, यस हम कर सकते हैं, बट दोनों केस में आंसर सेम नहीं आएगा। यू कैन check, you can try, it should not be applicable, okay, so the answer will not be same, so the associative property will not be applicable in subtraction, इसमें नहीं होगा। then multiplication में if we will check, तो पहले a इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आएगा, और 12 टू जा होता है 24। ओके, लेट चेक इन द सेकेंड केस, a इंटू बी इंटू सी, पहले b इंटू सी करेंगे, मतलब 3 इंटू 2 करेंगे आप, तो क्या होगा? 6। ओके, 3 टू ज़ा 6 होता है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखना है, 3 टू ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, सो इन बोथ केसेस आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है, बट डिवीजन में ये एप्लीकेबल नहीं होगी, आप चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिप्रेजेंट, मतलब जैसे आप कोई ऐसे नंबर लें जिसमें अगर आप 0 इज़ द आइडेंटिकल फिगर, ओके, तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी अदर नंबर्स में ऐड करें तो आंसर सेम आएगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यू कैन टेक एनी बिगर नंबर, एनी स्मॉलर नंबर, लाइक आई विल ऐड 1 प्लस 0, सो इट विल कम 1। अगर मैं 100 में भी 0 प्लस करूँ तब भी 100 आएगा। ओके, तो कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड 0 प्लस ए विल ऑल्सो कम ए, लाइक 0 प्लस 100 भी 100 होता है। ठीक है, सो दिस इज एप्लीकेबल इन एडिशन। नाउ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन, इफ वी विल डू 100 माइनस 0, ओके, चलो छोटा नंबर ले लेते हैं, 1 लेते हैं, 1 माइनस 0 विल बी 1, है ना, 1 माइनस 0 1 ही होता है, बट 0 माइनस 1 विल बी -1। ठीक है, ये आप धीरे धीरे सीखेंगे इंटीजर्स में कि -1 क्यों हुआ, बट ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में। नाउ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इज इट एप्लीकेबल इन मल्टीप्लिकेशन? यस, वाई एंड हाउ? a इंटू 0 इक्वल टू a, लाइक 1 इंटू 0 क्या होगा? 0। किसी भी नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो वो आंसर हमेशा 0 ही आता है, चाहे आप 0 को पहले लिख के मल्टीप्लाई करें या बाद में लिख कर करें, आंसर विल बी 0 ऑलवेज। सो गो टू द डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन में आइडेंटिटी नहीं एप्लीकेबल होगी, ओके, बिकॉज अगर सिंपली आई विल गिव यू एग्जाम्पल, लाइक 1 डिवाइडेड बाय 0 will be, is it 0? no, it will be infinitive। ठीक है, 1 by 0, 1 upon 0 लिखेंगे तो वो इन्फिनिटिव होता है, मतलब we can not define। ठीक है, हम उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, बट 0 by 1 can be 0, so this is not applicable। now the last property, distributive property। here two operations
आर इन यूज़, ठीक है। हम इसमें 2 ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं तो ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं मैथ्स में, यू नो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, ओके। सो हेयर ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी और ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो ये दोनों में इक्वल आना चाहिए। लेट्स चेक। 4 इंटू 3 प्लस 2 विल बी, पहले हम 4 3 जा करेंगे, 4 3 जा 12, उसमें प्लस कर देंगे 4 2 जा 8 को, तो वो 20 आएगा, ओके जी। तो 20, बट दोनों केस में क्या सेम आया 20, यहाँ हमने चेक नहीं किया, यहाँ चेक करते हैं। 3 प्लस 2 क्या होता है 5, 5 4 जा 20, सो दोनों केसेस में आंसर हमारा 20 ही आ रहा है। येस, इट इज़ एप्लीकेबल, ओके। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन, so a into b minus c is equal to a into b minus a into c. Let's check with the same number. 4 into 3 minus 2. First of all, let's check this 4, okay. So 4 into 3 minus 2 में पहले हम 3 minus 2 करेंगे, ठीक है। 3 minus 2 को सॉल्व करते हैं तो 1 आता है, and 4 1s are 4, okay. Now second right hand side, you just see the right hand side, 12 minus 8 will be also 4, so both sides are same. It means the distributive property is applicable in subtraction, okay, but it is not applicable in multiplication. How you can check the same number? अब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, like 4 into 3 into 2 क्या होगा, पहले 3 into 2 करें, 3 2 जा 6 and 6 4 जा 24। अब इसमें ए बी, ए इंटू बी करते हैं, ओके बच्चे। तो 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8 एंड 12 8 जा 96 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ओके, जस्ट ट्राई टू सॉल्व। इफ़ यू हैव लर्नड बोर्ड मास रूल तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, इन द सिंपल वे। एंड डिवीजन ऑल्सो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, ओके। So I hope you understood the definition and the properties of integers. Let me recall again the definitions of integers. क्या था integers? Integers में सभी whole numbers, natural numbers included होते हैं. They can be positive, negative, okay. When we go from 0 to लेफ्ट की साइड हम जाते हैं तो हम ऑल नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं, ओके। और 0 से जब हम राइट साइड पे जाते हैं तो सभी हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं। सो बेसिकली इंटीजर्स आर 3 टाइप्स: पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स। 0 नाइदर काउंट इन नेगेटिव एंड और इन पॉजिटिव। So properties I have already told you, these are the basically properties, commutative properties, associative property, identity and distributive property. So on the basis of these properties we will solve the exercises, okay. And in this video only this much is there. I hope you understood. So to learn more, और सीखने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है, ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। एंड आई हैव अपलोडेड शॉर्ट्स ऑल्सो रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अगर आपको समझ आता है तो आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस आई मीन टू से, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।